Hello, grade 6 students. Welcome to Anudeep, your study buddy. We completed the first chapter, that is integers. Today we are going to start with chapter 2, squares and square roots. So let's find out what is square and what is square roots. Let's start. So square and square root आखिर है क्या? स्क्वायर अब तक हमने सिर्फ शेप्स में देखे हैं, राइट? ये वर्ड हमने अब तक ज्योमेट्रिकल शेप में सुना है. So let's find out what is square of a number, what is square root of the number. When a number is multiplied by itself, the product obtained is called a square of the number. कोई भी नंबर लो. If you are taking a number of 111 into 100, सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा स्क्वायर ऑफ दैट नंबर 111 का स्क्वायर, which is 1, 2, 3, 2, 1. Now, these are the tricks, few tricks that we know that अगर one सारे digits में 1 है, नंबर के सारे digits में 1 है, तो हम कैसे मिलते हैं? We will look into that in next slides. But these are the tricks, few tricks. Okay. So यहाँ पे आयु तो मैं और एक बता देती हूँ. If suppose you have 1111 into 1111, कितने digits है? 1, 2, 3, 4, right? So you have to write 1, 2, 3, 4 and then ulta 3, 2, 1. That is the square. Okay. So this is particular about a number whose all digits are 1 and uska square nikalna. Let's forget about this now. We will see this in the next slide. So हम क्या बोल रहे थे कि for example 2 into 2 is 4. Okay, 2 into 2 is 4. So we call as 4 is the square of 2, right? And we write as is 2 base में और उसका ऊपर superscript बोलते हैं इसे 2 लिखते हैं. For digital writing means जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइप कर रहे हैं या यूजिंग कीबोर्ड टाइप कर रहे हैं ना, तो ये सुपरस्क्रिप्ट लिखने में थोड़ी आता है पर थोड़ा हेक्टिक होता है. So to make the process easy of typing, we write this. This is 2 square. Suppose I have 111 square. So how I will write 111? This called as caret sign. You will get it in the number keys of 6. 6 का जो number key है उसमें shift दबा के आपको मिलेगा. And this. So you don't have in school, you will write in this form. But while explaining, I will write और जो भी टाइपिंग किया है बेसिकली उसमें आपको इस फॉर्म में ही मिलेगा. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एंड रीड एज 2 square और 2 raised to power 2. 2 raised to power 2. 111 raised to power 2. तो पावर क्या है इसका? 2 है. ओके, सपोज माय नंबर इज a और उसका पावर है 3. इसको बोलेंगे a raised to power 3. Okay, a raised to power 3. So similarly, a into a is a square. Here in this, you will find out that many times I have written like this. Okay, और इसको कहेंगे a raised to power 2. So to find the square of any number, we multiply that number itself. अभी discuss किया. The squares of first 25 numbers is as follows. Now, if you by heart remember or rote learn this, it will be better for faster calculation. It is pretty simple. 1 का square 1, 4 square. 4 square कैसे मिले? 2 square is 2 into 2. 3 square is 3 into 3. 3 3 is 9. 4 square is 4 into 4. That is 4 4 is 16. Likewise, we have done till 25. अगर आपको 30 तक याद हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा. Okay. So I will not spend time on this. I will ask, मेरा ये रहेगा कि अगर आप 25 तक के नंबर्स स्क्वायर के नंबर्स याद कर लेते हो तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी. नेक्स्ट, ट्रिक्स टू फाइंड आउट अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर. सो देयर आर डिफरेंट ट्रिक्स. हमने हमारे स्पीकर सीरीज में वैदिक मैथ्स टीचर के साथ बात की है. मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ. अगर आपको इंटरेस्ट है वैदिक मैथ्स में टू लर्न दिस शॉर्ट ट्रिक्स to increase the speed, you surely visit such teachers and attend such classes so that it will help you to faster the calculation. Okay. So now a square number ending 5.
इधर बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। सो यहाँ पे नंबर है 25। अब 25 इज प्रीटी स्मॉल नंबर। आपको क्या करना है, ये जो 5 का स्क्वायर 25 एज इट इज यहाँ पे लिखना है। ठीक? रह क्या गया 2, तो 2 को क्या करना है, 2 इंटू 3 क्या आता है 6, राइट। 2 का नेक्स्ट नंबर 3 है, इसलिए 3 लिया। सो 6, सो आई विल राइट हियर एंड दिस इज योर स्क्वायर ऑफ 25। ओके, नाउ लेट्स टेक 35। 35 का स्क्वायर आप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, सो लेट्स राइट 35। आई एम राइटिंग हियर 35 स्क्वायर। पहले तो हम क्या करेंगे, 25 एज इट इज लिख देंगे 5 स्क्वायर। अब 3 का अब नेक्स्ट क्या आता है 4, सो 3 इंटू 4 इज 12, राइट। सो हम वी विल राइट 12। सो चेक, आप मल्टीप्लीकेशन करके देखो, 35 का स्क्वायर है 1225। वेरी इजी, फास्ट। सो नेक्स्ट लेट्स डू 63 का 635 का स्क्वायर। सो 5 का आएगा 25। अब 63 के आगे क्या आता है, 63 के आगे आता है 64, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज द आंसर? द आंसर विल बी 4032। बस ये इसके सामने लिख देना है 4032। सो योर 635 का स्क्वायर है 4,03,225। सो एंडिंग विथ 5 समझा आपको, ये बहुत इजी हो जाएगा। अब squaring numbers near base. Base means those numbers like 10 या 10 के count पे 100 and so on, 1000, 10,000, these are called base. Okay, तो बेस के नजदीक वाला जैसे 9 है या 12 है या 111 है, ये सारे बेस के नजदीक आ जाते हैं नंबर। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ओके, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, मैं सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ इसको कैसे करना है। लेट्स टेक 102। इट इज बेस्ड ऑन वन मैथ्स फॉर्मूला। मैथ्स फॉर्मूला ये है कि x प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है x को स्क्वायर कर लो, y को भी स्क्वायर कर लो, और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है उसको डबल कर लो। ओके, दिस इज अ फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला भी अल्जेब्रिक में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 102 को इस तरह से लिखना है 100 प्लस 2 स्क्वायर। आप यहाँ पे ये x आ गया, ये y आ गया, ये 2 है, हाँ z जैसे लग रहा है पर 2 है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 2xy, 2 लिखना है, 100 लिखना है, एंड y क्या है 2, राइट, प्लस y स्क्वायर क्या है, तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर मीन्स राइट, प्लस 2 into 10 is 200, 200 into 2 is 400, and 2 square is 4. So if you add this, we will get 10,404. Okay. So basically, a number less than 100, okay, a number less than 100, and अगर उससे ज़्यादा है, तो those who are near to the base will follow this rule. ये याद रखना, x प्लस वाई द होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है। okay? नेक्स्ट हम एक सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक 1012 का स्क्वायर। ओके, 1012 आई कैन राइट इट 1000 प्लस 12, राइट, और उसका स्क्वायर। लेट्स राइट द फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला नया है तो आपको आसानी से याद नहीं होगा। So x plus y square is x square plus 2xy plus y square. और अपने इधर x square है, ये 1000 is x and 12 is y, right? So let's convert. X square means 1000 का square, right? 2 into x is what, 1000 into y is what, 12 plus y स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 12 स्क्वायर।
इधर तो समझा. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. सो 1000 स्क्वायर कितने जीरोस आएंगे, यहाँ पे 3 जीरोस है, डबल होंगे, 1 2 3, 1 2 3 प्लस 2 into 1000 2000, 2000 into 12 24,000 and 12 square is 144. ओके. अगर इसको हम ऐड करते हैं हमें आंसर मिलता है, सॉरी, so our the square of 1012 is 10,24,144. ये सारी चीजें है ना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, अब ये मुझे नंबर देख के ही पता चल रहा है आई कैन मेक इट 1000 प्लस 12. ओके, सपोज 908 होता तो 900 प्लस 8 मैं कर पाऊंगी. ओके, सो आई नो द स्क्वायर ऑफ 9, आई नो द स्क्वायर ऑफ 8, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है. नेक्स्ट, सो जनरल मेथड फॉर एनी नंबर जो अभी फिलहाल दिखाया. सो a प्लस बी द होल ब्रैकेट स्क्वायर सेम वही है. x के बदले a लिया है और y के बदले b लिया है इधर. ओके, तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. अब लेट्स सी 43 का. हम 43 का देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब 43 को कैसे डिवाइड करेंगे हम बोलेंगे 40 प्लस 3. राइट, हमें 4 का भी स्क्वायर पता है, 3 का भी स्क्वायर पता है, बहुत सिंपल है. 40 स्क्वायर प्लस 2 into 40 into 3, right, plus 3 square. What is 40 square is 1600. What is this multiplication? 2 into 40 is 80. 80 plus 3 is what? 80 into 3 is 240, right? Plus 9. So our answer is 1849. So ये जो है ये बिलो 100, और अगर 100 से ऊपर है तो नियर द बेस्ट था. 100 1000 के पास अगर नंबर है नजदीक वाला, तो यहाँ पे ये मेथड बहुत आराम से यूज किया जा सकता है. अच्छा, अभी आपको इसमें से कोई मेथड याद ही नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे. आपको मल्टीप्लीकेशन पता है, यू विल स्टार्ट डायरेक्टली डूइंग मल्टीप्लीकेशन. अगर आपको ये कोई उस वक्त याद ही नहीं आया, अगर आपको पता है 55 और आपको ट्रिक ही याद नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है, यू नो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, सो 3 ने मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 ने एडिशन करके आपको आंसर आ जाएगा. So please don't give up if you don't know the trick. You know the normal multiplication and you can still solve the problem. Now let's see square root. Okay, the square root of any number is that number when multiplied by itself is equal to the given number. इसका मतलब ये है कि square का number square root of a square is a. So square root के लिए ये साइन है. Square root of any number is a. So ये जो साइन है हमने square root ले गए. So when I will write 4, this means q square is equal to, when I say square root of 16, this means 16 is 4 square, right? So this will be sorry, wrong, 4. So this 4. Okay, got this? So what is the square root of 81? What is the square root of 81? 81 is the, actually 81 किसका स्क्वायर है? 9 स्क्वायर. तो हम ऐसे लिखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा 9. You can directly write 9. I am showing you the middle step. Okay. अब ये ऐसे क्यों, इसके पीछे भी रीजन है, बट वो रीजन मैं अभी डिटेल में नहीं जाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आपको इस टाइम में डिफिकल्ट लगेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट. हमें स्क्वायर कैसे निकालना पता है. स्क्वायर को सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्वायर मिलता है. पर हमें अगर ये स्क्वायर नंबर दिया है तो ये किसका स्क्वायर है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें मेथड्स है. नाउ देयर आर 2 मेथड्स, एक मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड दूसरी है डिवीजन मेथड. सो लेट्स सी बोथ द मेथड्स.
मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन आपने एचसीएफ एलसीएम में पढ़ा है। क्या करना पड़ता है, हमें 676 लेना है और प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। सो पहले तो ये इवन नंबर है तो 2 से जाएगा ही। सो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 रह गया और ये हो गया 2 8 जा 16। ओके, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 1 रहेगा, 2 6 जा 12, 1 रहेगा, 2 9 जा 18। ओके, नाउ 169 आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल यूज कर सकते हैं। देखो इससे 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या। सो 9 plus 6 15 plus 1 16, 16 is not divisible by 3 and 9. Okay, now this is not divisible by 4 5 6. Up now, since I have so many years of experience, I can say that it is a 13, it is divided by 13. So 13 से अगर मैं करती हूँ, 13 is the prime number. So मुझे मिलता है 13 1 जा 13, 3 रह गए हैं, 13 3 जा 19, again 13. Okay, now what you have to write, you have to make a pair. So 2 का एक पेयर बन गया और 13 का एक पेयर बन गया. So that's why it is the square root 676 का स्क्वायर रूट है 26. प्लीज मेक अंडरस्टैंड दैट 26 का स्क्वायर है 676, but square root of 676 is 26. Okay, this is prime factorization, but sometimes it becomes too lengthy और बहुत बड़ा नंबर है 4 digit 5 digits, it becomes too lengthy and mistakes होने के chances. So there is one more method, that is division method. Let's go. I have taken the same number, okay, 676. इस नंबर में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, पर इसका मेथड अलग है. अब 676 में आपको क्या करना है, हम जनरली डिवीजन करते वक्त हम जो 100 का वैल्यू है, 100 प्लेस जो ये लेट सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे प्लेस है उसमें करते हैं. पर इस डिवीजन मेथड में आपको लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट से पेयर बनाने हैं. सो मैंने बनाया ये पेयर 76 और 6 एक ही रह गए. ओके, यहां तक समझा. अब हमें क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर है और वो 6 या 6 से कम है. सो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, राइट. 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9. ओके, सो 9 इज ग्रेटर देन 6, दैट्स व्हाई वी कैन टेक 2. ये 2 का स्क्वायर ले सकते हैं. सो हमने लिया 2, ऊपर भी लिख दिया 2. 2 का स्क्वायर क्या है 4, राइट. यहाँ पे भी लिख दिया. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ पे हमें एडिशन करना है. सी दैट एट अ टाइम 3 थिंग्स आर हैपनिंग. आपने 2 2 जा 4 इधर लिख दिया, ओके, 2 ऊपर लिख दिया, या इस साइड पे आपको एडिशन करनी है, इस साइड पे आपको माइनस करना है. 6 minus 4 2. नाउ 76 एज इट इज नीचे लेंगे हम. अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लेना है जो हम ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, और इसका मल्टीप्लीकेशन ये 276 से कम या उतना ही होना चाहिए. ओके, व्हाई आई हैव टेकन 6, बिकॉज यहाँ पे 6 है और 6 मीन्स वो 6 36 आने के चांसेस है. ओके, गेस किया है मैंने, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 लिया है. सो लेट्स सी 46 into 6 क्या आता है. 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 प्लस 3 27. तो एग्जैक्ट हो गया. तो हम ऊपर लिख देंगे 26, यहाँ पे लिख देंगे 276 और ये हो गया अपना रिमाइंडर. okay? अब आपको अगर और एक एक्सप्लेनेशन इसमें चाहिए तो हम कोई और वैल्यू ले सकते हैं, बट दैट आई विल एक्सप्लेन आफ्टर सम टाइम, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है. इफ यू सी द यूनिट नंबर ऑफ ऑल द स्क्वायर नंबर्स, यहाँ पे 1 है, 6 9 0 9 6 1 4 5. यहाँ पे देखो 4 9 5 6 4 1 1. सो कौन से नंबर्स यूनिट प्लेस में आते हैं, राइट.
जीरो आता है, यस जीरो आता है बिकॉज 20 10 में जीरो है. वेर इज 10? 10 इज हियर. ओके, सो जीरो इज देयर. ओके, उसके बाद टू आता है क्या? टू नहीं आता है बिकॉज टू स्क्वायर इज फोर, तो फोर आ जाता है. थ्री स्क्वायर इज 9. फोर स्क्वायर इज 16, तो सिक्स आ जाता है. फाइव स्क्वायर इज 25, फाइव आ जाता है. देन सेवन, सिक्स स्क्वायर इज 36, तो सिक्स आ गया. सेवन स्क्वायर इज 49, नाइन आ गया. एट स्क्वायर इज 64, 64 का फोर आ गया. एंड नाइन स्क्वायर इज 81, वन आ गया. वन स्क्वायर इज वन, सो ये वन आ गया. एंड जीरो स्क्वायर इज जीरो. तो हमारे कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उसमें यूनिट प्लेस में 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ये ही नंबर्स आएंगे. इफ यू सी, वन स्क्वायर वन है, टू का फोर है, थ्री का 9 है, फोर का 16, फाइव का 25, सिक्स का 36, 7 49, 8 64, 9 81. ओके, 10 100. So 1 4 9, unit place 6, unit place 5, unit place 6, unit place 9, unit place 4, unit place 1, unit place 0. क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर है, सपोज 77 का स्क्वायर निकालना है, तो ये जो है 7 7 49. ओके, फिर यहाँ पे जब इस 7 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, आपके यूनिट प्लेस में 9 ही रहेगा. ये एक बात बहुत अच्छे से समझ लो. नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सॉल्व एग्जांपल्स. प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस बिकॉज हमें अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए इससे मोटिवेशन मिलता है. ओके, ये जब हम सब्सक्राइब करने कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट हो. हमने जो ये एक कार्य शुरू किया है कि विदाउट क्लास अगर आप कोई बच्चा मैथ्स पढ़ पाए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे पाए, वी विल बी वेरी मच हैप्पी कि हमारे वजह से कोई बच्चा अच्छे से मैथ्स पढ़ रहा है, उससे मैथ्स अच्छा लगने लगा, इसलिए. ओके, लेट्स गो टू द सॉल्व्ड एग्जांपल नाउ. Which of the following is a perfect square? अब अगर आप इस सब का स्क्वायर रूट निकालने लगे तो बहुत टाइम जाएगा. जस्ट अभी हमने एक रूल दिखा कि स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आइदर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 हो सकता है. उसके अलावा कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस में नहीं होगा इफ इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर मीन्स जो प्रॉपरली 55 इंटू 55 है, राइट. सो यहाँ पे कौन से नंबर में डिजिट्स है, यूनिट प्लेस है? आई कैन सी 3364 बिकॉज 4 इज कैन बी इन द यूनिट प्लेस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ पे और कोई नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए ये एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. वेरी फास्ट, वी हैवंट डन एनी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड. Just looking at the unit place, we have found out which can be a perfect square. Now, find the perfect square of 51. आप अगर आपको ट्रिक्स याद नहीं है, सो 51 इंटू 51 कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा. या जो मेथड है x प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. अब 50 को मैं 51 को मैं ऐसे डिवाइड कर लूंगी, राइट. सो 50 स्क्वायर प्लस 2 into 50 into 1 plus 1 square. What is y is 1. 50 square is, oh sorry, what I am doing, 22,500. Okay, 2 into 50 is 100 into 1, 100 plus 1 square. So the answer is 2601. Okay, इस मेथड एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से भी यही मेथड मिलेगा. अगर आपका टेबल्स बहुत अच्छे हैं तो दिस कैन बी अ फास्टेस्ट मेथड, अदरवाइज दिस कैन आल्सो बी यूज्ड. ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी फास्ट है उस पे. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 95? अब 95 का स्क्वायर हमें ढूंढना है. 95 कैसा है, हमने ट्रिक देखी थी. 5 का स्क्वायर लिख दो. 9 का क्या करेंगे, 9 इंटू 9 के आगे क्या आता है 10. सो 9 इंटू 10 इज 90. सो अवर आंसर इज 90.
to 5. Simple, fast, yes. 5 का तो ट्रिक याद रखिएगा, वो बहुत इजी हो जाएगा. What is the square of 87? Let's use 80 plus 7, the whole bracket square. Okay, that means 80 square x square plus 2xy. 2 into 80 plus into 7 plus y square 7 square. 80 in 80 square कितना आएगा? 8 का स्क्वायर क्या आता है? 6400, 64. So 6400 plus 2 into 80 into 7, it will be 1120 plus 7 square is 49. So if you add all, you will get 7569. Option number 2. Okay. What is the square root of 626? जैसे मैंने बोला था टिल 30 अगर आप स्क्वायर रूट याद करके रखते हो तो आपको बहुत इजी जाएगा. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड में 626 का फाइंड आउट किया है. दैट्स व्हाई आई विल टेक दिस एज अ टूल. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2704. नाउ यहाँ पे आप मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो, बट आई विल शो यू द मेथड ऑफ डिवीजन बिकॉज वो हमने एक बार ही किया. सो 2704 हमें डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है. नाउ यू हैव टू मेक अ पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट प्लेस. तो ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर. नाउ 27 में आपको इस टाइप से फर्स्ट नंबर चूज करना है विच विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर एंड लेस देन 27 और 27. सो हमें पता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर है 25 एंड 6 का स्क्वायर है 36. 36 is greater than 27, so we will shift to the 5. We will write 5 here. Okay, 5 5 are 25 आ गया. इधर भी 5 लिख देंगे, इसको करेंगे हम ऐड, इसको करेंगे माइनस. 27 minus 25 is 2. आप 0 4 एक साथ नीचे लेंगी. ओके, डन. यहां तक समझा. अब हमें यहाँ पे इस पे ऐसा नंबर लेना है कि जिसको यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आएगा. सो इफ आई टेक 100 एंड सपोज 1, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 101 ही आएगा, राइट? सो दिस विल बी अ रॉन्ग चॉइस ऑफ number. So what I will do, I will take 2. I will write 2 here. Multiply 2 2s are 4, 2 zeros are 0, 2 1s are 2, and these 2 I will write here. 204 minus 204 is 0, and our answer is it's a square root of 52. Option number 2. Okay. डिवीजन मेथड प्रैक्टिस करने से आएगी, क्योंकि जब मैं बहुत सालों के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम फिर से शुरू किया तो मुझे थोड़ी टाइम लगा क्या मेथड है. तो जो स्कूल लाइफ में इट इज वेरी इजी. तो आप जब बार बार स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे आपको ये मिलेगा. दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड व्हेन द स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर का नहीं होता है. लाइक सपोज दिस इज 52, पर अगर 52.5 का हमें स्क्वायर देखना है तो कैसे करोगे? इसलिए ये मेथड यूज होती है. उसमें अपना फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं हो सकता. ओके, सो अभी नेक्स्ट इसमें हम एक्सरसाइज 2 के थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जो सॉल्व एक्सरसाइज में है ही नहीं. सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ सॉल्विंग एक्सरसाइज 2. तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा. सी यू, बाय बाय.